Hello students, you are welcome in social science video class. Myself is Dr. Kuldeep Singh and I will discuss with you an important chapter of class ninth, that is physical features of India. I have discussed two features, physical features of India in the last video, which were Himalayan mountains and another one was the northern plains. During the discussion, we got familiar with few words like Bangar, Bhabhar, Khadar, etc. We have seen that these words have their peculiar importance because Bhabar is a piece of land which is situated at the bottom of mountains and mixed with big pebbles, big stones. On the other hand, Bangar is also a piece of land which is mixed with kankars. Kankars means small pebbles. Another important form of land is Khadar. Khadar is a land which is situated nearby rivers and it has many features like fertility, etc. Now in this video I will discuss with you another important feature, physical feature of India, that is peninsular plateau. As we know that there are many features, geographical features of India, out of which one is peninsular plateau. First of all, we will have to understand what is peninsula. Peninsula is also a form of land that is covered with water from three sides. So Indian southern part is like a peninsula because it is covered with water from three sides, and it is plateau also. Plateau is also a form of land, piece of land which is raised above but its surface is flat. That is why this feature is called peninsular plateau. It means it is both peninsula as well as plateau. Peninsular plateau is a tableland, a land like a table, composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks. पेनिनसुला को अगर हमें समझना है तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी भूमि का टुकड़ा है जो ऊपर जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, और प्लेटू का मतलब वह भूमि का टुकड़ा जो ऊपर उठा हुआ है लेकिन इसका जो सरफेस है वो ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है, समतल है. इट इज़ लाइक अ टेबल, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड टेबल लैंड. अब इसको बनने में बहुत लंबा वक्त लगा, बहुत लंबा समय लगा, इसलिए इसके अंदर कई तरह की चट्टानें भी पाई जाती हैं जिसमें क्रिस्टल, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स महत्वपूर्ण हैं. इट वाज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड and thus making it a part of the oldest landmass.
अब इसका जो निर्माण है वो कैसे हुआ, यानी कि जो पेनिनसुलर प्लेटो है भारत का जो हिस्सा, जो साउथर्न पार्ट है, ये बना कैसे। तो इसके बनने में बहुत लंबा समय लगा और ये गोंडवाना लैंड के टूटने से हुआ कि गोंडवाना जो लैंड है वो बिल्कुल अलग हो गई, ड्रिफ्ट हो गई, जिसकी वजह से यह एक बहुत पुराना लैंड मास है, बहुत पुराना भूमि का टुकड़ा है। द प्लेटो हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। प्लेटो के ऊपर बहुत चौड़े चौड़े, बहुत शैलो और कम चौड़े, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गहरी नहीं, कम गहरी घाटियाँ हैं और उसके ऊपर राउंडेड गोलाकार में पहाड़ियाँ हैं। तो ये जो हमारा प्लेटू है या फिर जो हमारा पेनिनसुलर जो रीजन है भारत का, ये पूरा हमारा साउथर्न पार्ट है जो स्टार्ट हो जाता है महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो ये पूरा इस पार्ट में आता है। इसके अलावा इसका कुछ कोस्टल एरिया है, कोस्टल लाइन है जो उड़ीसा और बंगाल तक जाती है उधर, और वेस्ट में ये गुजरात तक जाता है। द पार्ट, इसके साथ ही दिस प्लेटू कंसिस्ट्स ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स, namely the Central Highlands and the Deccan Plateau. The part of the peninsular plateau lying to the north of the नर्मदा रिवर, यानी कि जो ये पेनिनसुलर प्लेटू है इसका एक हिस्सा नर्मदा रिवर के नॉर्थ में स्थित है। इसी के साथ कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेटू इज़ नॉन द सेंट्रल हाईलैंड्स, और एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो मालवा प्लेटू के नाम से जानता है, जिसे हम सेंट्रल हाईलैंड भी कहते हैं। यानी कि एक तरह से इस पेनिनसुला का सेंट्रल पार्ट जो ऊपर उठा हुआ है, हाईलैंड। द विंध्यान रेंज इज़ बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। The further westward extension gradually merges with the sandy and rocky desert of Rajasthan. The flow of the rivers draining this region, namely the Chambal and Sindh, the Betwa and the Kain, is from southwest to northeast. तो ये इस क्षेत्र की कुछ नदियाँ हैं, जैसे कि कुछ राजस्थान का इसके अंदर डेजर्ट का हिस्सा भी है, और जो डेजर्ट है वो बहुत ही सैंडी है, रेतीला है और रॉकी है। दूसरा, इसमें कुछ इस क्षेत्र में, राजस्थान वाले क्षेत्र में चंबल नदी, रिवर जो है चंबल, वो फ्लो करती है, बहती है। दूसरे साथ ही साथ इसमें सिंध नदी भी है, बेतवा भी है और केन नदी भी है। The central highlands are wider in the west but narrower in the east. The eastward extensions of this plateau are locally known as the Bundelkhand and Baghelkhand. तो आप देखेंगे कि ये जो लैंड है ये इसकी एक ख़ास बनावट है, ख़ास पहचान है, इसकी अलग अलग पहचान है। इस लैंड में भी कुछ क्षेत्रों की, कहीं किसी एरिया को बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं तो कहीं बघेलखंड के नाम से जानते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें तो इसी को आगे समझें। द छोटा नागपुर प्लेटो मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। दामोदर रिवर है, दामोदर रिवर जो कि ये आपका दामोदर रिवर का जो एरिया है, इस के द्वारा जो पानी की सप्लाई दामोदर रिवर की से होती है उस एरिया को, वो एरिया छोटा नागपुर प्लेटू कहलाता है। द दक्कन प्लेटू इज ए ट्रायंगुलर
लैंड मास। दक्कन जो प्लेटू है ये ट्रेंगुलर टाइप का है, वी शेप में एक तरह से ये, इट इज़ लाइक ए वी शेप लैंड दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, जो रिवर नर्मदा के साउथ में स्थित है। द सतपुरा रेंज flanks its broad base in the north, while the Mahadev, the Kaimur Hills and the Maikal range from its eastern extensions. Locate these hills and ranges in the physical map of India. हम फिजिकल मैप पे इसको आसानी से समझ सकते हैं और मैप को देखकर ही हम जान सकते हैं कि ये रीजन, ये क्षेत्रीय एरिया कौन सा है। द डेक्कन प्लेटो इज़ हायर इन द वेस्ट। डेक्कन प्लेटो का जो दो तरह से बटा हुआ है, वो जो इसका वेस्टर्न पार्ट है वो हाई है, ऊंचा उठा हुआ है, और इसका जो ईस्टर्न पार्ट है वो जो है नीचा है। तो इस तरह से स्लोप बनाता है, ये स्लोप फ्रॉम वेस्ट टू ईस्टवर्ड, स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड्स। सो एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटो इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्ट जब हम जाते हैं तो देखेंगे कि उधर भी इसका जो है विस्तार है, यानी कि उड़ीसा, बंगाल तक ये जो है इसका लगभग असर देखने को मिलता है। लोकली नोन एज दी मेघालय कार्बी एंगलोंग प्लेटू एंड नॉर्थ काचर हिल्स, it is separated by a fault from the Chota Nagpur plateau. So, three prominent hills ranges from the west to the east are Garo, Khasi and Jaintia hills. तो ये पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों पर जो लोग रहते हैं, जो उन्हें शेड्यूल ट्राइब के नाम से जाना जाता है, और उन शेड्यूल ट्राइब के नाम भी यही हैं, गारो, खासी, जैंतिया। अब इन पहाड़ियों के नाम भी इसलिए पड़े हैं क्योंकि वहाँ पर ये समुदाय, ये समूह रहते हैं। द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेटू रेस्पेक्टिवली। यानी कि जो हमारा ये जो डेक्कन प्लेटू है ये समुद्र से लगा हुआ है तीनों तरफ से, और तो इस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। जो वेस्ट में पड़ता है इसका एरिया, उसको वेस्टर्न घाट कहते हैं, और जो ईस्ट में पड़ता है उसको ईस्टर्न घाट कहते हैं। तो वेस्टर्न घाट तरफ हम देखेंगे कि ये महाराष्ट्र, केरला और आपका कर्नाटका वाला पार्ट लगता है, और आप जब ईस्ट की तरफ देखेंगे तो आंध्रा, उड़ीसा का कुछ हिस्सा, कुछ आंध्र प्रदेश और उसके साथ तमिलनाडु। इसी तरह से वेस्टर्न घाट लाइक पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, they are continuous and can be crossed through passes only. इनको passes के द्वारा ही हम क्रॉस कर सकते हैं। कुछ पास हैं, कुछ दर्रे हैं जहाँ से निकल सकते हैं। लोकेट द थाल और भोर एंड पाल घाट्स इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। ये मैप में क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के कि भाई आप थाल, भोर और पाल घाट्स को बताइए कि ये कहाँ पर हैं नक्शे में, मैप में। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन दी ईस्टर्न घाट्स। ये हमने पहले ही जो है इसके बारे में पता चल चुका है हमें कि वेस्टर्न घाट्स थोड़े ऊंचे हैं, ईस्टर्न घाट कम ऊंचे हैं, तो इसलिए स्लोप बन जाता है फ्रॉम वेस्टर्न टू ईस्टवर्ड। सो देयर एवरेज एलिवेशन इज़ 900 to 1600 मीटर्स। यानी कि जो निचला हिस्सा है ईस्टर्न वाला, अगर 900 मीटर तक की ऊंचाई है तो या फिर जो ऊंचाई वाला हिस्सा है वेस्टर्न घाट वाला, वो कहीं कहीं 900 मीटर ऊंचा है तो कहीं 1600 मीटर ऊंचा है। तो ये इस तरह से, और यानी सबसे ऊंचा 1600 मीटर है और सबसे कम ऊंचा 900 मीटर है। अगर हम बात करें इसके ईस्टर्न घाट वाली तरफ, तो ये 600 मीटर की तरफ वहाँ इसकी ऊंचाई बनती है। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरीज
ठीक है. In the south, the eastern ghats are discontinuous and irregular and dissected by rivers draining into the Bay of Bengal. The western ghats cause orographic rain by facing the rain bearing moist winds to rise along the western slopes of the ghats. The western ghats are known by different local names. western ghats के अलग अलग नाम हैं. वहाँ के जो लोग हैं अपनी भाषा में इसे अलग अलग नामों से जानते हैं, पुकारते हैं. The height of western ghats progressively increases from north to south. The highest peaks include the अनाईमुड़ी जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है. एंड द डोडा बेटा, इसकी जो हाइट है वो 2637 मीटर्स है और ये वेस्टर्न घाट्स में है. ठीक है, अनाईमुड़ी और डोडा बेटा. महेंद्रगिरी जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर्स है, इज़ द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट. ईस्टर्न घाट में ये क्वेश्चंस जो है वन वर्ड्स के क्वेश्चंस में ख़ास तौर से आते हैं ये कि वेस्टर्न घाट में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो अनाईमुड़ी. और ईस्टर्न घाट में सबसे ऊंची पीक कौन सी है, तो वो है आपकी महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट में. तो ये ध्यान रखना है. सेवरॉय हिल्स एंड दी जावादी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स. मैप पे भी इनको कई बार हम समझते हैं. तो लोकेट द फेमस हिल्स स्टेशंस ऑफ, जैसे इसमें उडागा मंडलम है, पॉपुलरली नोन एज ऊटी. उडागा मंडलम को हम ऊटी के नाम से जानते हैं. तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि भाई ऊटी का असली नाम क्या है, तो वो उडागा मंडलम है, या उडागा मंडलम को किस नाम से जानते हैं, ऊटी के नाम से जानते हैं. एंड और एक दूसरा जो है एक और बढ़िया अच्छा हिल स्टेशन है वहाँ पर जिसको कहते हैं कोडाई कनाल. तो कोडाई कनाल और उडागा मंडलम दो बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत हिल स्टेशंस हैं. ये जो है आपके डेक्कन प्लेटू में. वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज़ द ब्लैक सोयल. एक इसकी यानी कि एक फीचर तो ये है कि एक हाई या रेज्ड लैंड है. हाई लैंड इसको कहते हैं, टेबल लाइक लैंड है. और इसमें वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट हैं. वेस्टर्न घाट जो है वो ऊंचा है और जो ईस्टर्न घाट है वो नीचा एरिया पड़ता है. तो इट मेक्स ए स्लोप की तरह है ये ज़मीन. इसका दूसरी जो फीचर है वो ये है कि ये ब्लैक सोयल है यहाँ पर ना. ब्लैक सोयल, काली मिट्टी वहाँ पाई जाती है, नॉन एज डेक्कन ट्रैप. और इसलिए इसको डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं, डेक्कन ट्रैप. दिस इज़ ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन. ये काली मिट्टी इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुत पहले लाखों साल पहले यहाँ पर वॉल्केनो थे और वॉल्केनो वहाँ पर जब वो ब्रस्ट हो गए, फट गए, तो उसमें से लावा निकला और लावा वहाँ पर धीरे धीरे वो ठंडा हो गया, जम गया. फिर हज़ारों साल में जाकर के वो लावा की जो है वो मिट्टी में तब्दील हो गया और इस तरह से वो मिट्टी काली मिट्टी बन गई. तो दिस इज़ वॉल्केनिक ओरिजिन. हैंस दी रॉक्स आर इग्नियस. इग्नियस रॉक्स हैं इसको हिंदी में कहते हैं आग्नेय चट्टान. तो आग्नेय चट्टानों से बना हुआ एरिया है और ये वॉल्केनिक ओरिजिन का है. दैट इज़ वाई इट्स सोल इज़ ब्लैक सोयल. एक्चुअली these rocks have denuded over time and are responsible for the formation of black soil. वास्तव में ये जो चट्टानें हैं इनको बहुत साल जो है लगे इन रॉक्स को टूटने में और इस वजह से यहाँ की ये मिट्टी जो है वो काली मिट्टी बनी. द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स of the peninsular plateau.
इसमें एक आपको अरावली हिल्स भी देखने को मिलेंगी। तो जो अरावली हिल्स हैं वो भी आपको वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स में देखने को मिलेंगी। These are highly eroded hills and are found as broken hills. They extend from Gujarat to Delhi in a southwest northeast direction. तो हम देखेंगे कि हमारे नॉर्थ इंडिया में भी जो है दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में एक पर्वत की एक श्रृंखला है, सीरीज़ है एक तरह से, एक जो, तो इसको जो हिल सीरीज़ है इसको हम अरावली हिल के नाम से जानते हैं। और ये इसमें जो है कि सॉलिड स्टोन्स हैं, ये इसमें जो पत्थर हैं, पत्थर पाए जाते हैं बड़ी मात्रा में। तो ये सॉलिड हिल्स हैं, ये कोई माउंड नहीं है या मिट्टी के टीले नहीं हैं, तो इनको हम अरावली हिल्स कहते हैं। तो एक जो है तीसरी इसकी फीचर हमने डिस्कस की है वो है पेनिनसुलर प्लेटो। तो अभी तक हमने इसकी 3 फीचर्स डिस्कस कर ली। टोटल इसकी 6 फीचर्स को हम इसमें 6 फीचर्स मानते हैं, या इसकी जो इसकी खासियत है, स्पेशलिटी है इंडियन लैंड की, तो उसको हम 6 पार्ट्स में बांटते हैं। पहला है हिमालयन माउंटेन्स है, दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा है पेनिनसुलर प्लेटो। नाउ इट्स फोर्थ physical feature is Indian deserts. So some part of India is desert, okay, like you can see the area of Rajasthan and some part of Gujarat. These both areas are deserts. The Indian desert lies towards the western margins of the Aravalli Hills. अरावली हिल्स के वेस्ट की तरफ आप जाओगे तो आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा ना, जिसको हिंदी में मरुस्थल कहते हैं। सो इट इज़ एन अनअंडुलेटिंग सैंडी प्लेन। बहुत बड़े बड़े ये मैदान हैं, लेकिन उस मैदानों में मिट्टी नहीं है बल्कि रेत भरा हुआ है, सैंड है वहाँ पे, सॉइल नहीं है, मिट्टी है, मिट्टी नहीं है बल्कि सैंड है। और सैंड का और मिट्टी में फ़र्क यही है कि जो सॉइल है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कण हैं, वो आपस में चिपक सकते हैं, उनके बीच में यूनिटी हो सकती है। बट सैंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग होते हैं वो, और दे आर फ्री टू रन, है ना। जैसे ही हवा आती है तो वो आराम से उड़ सकते हैं, आराम से उड़ जाते हैं। ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर ये सैंड पाया जाता है या रेत या मिट्टी, जिसको हम रेतीली मिट्टी कहते हैं, वहाँ पर फसलें बहुत कम होती हैं क्योंकि इसके लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। दूसरी तरफ जो सॉइल होती है, और ख़ास तौर से एलुवियल सॉइल, ये बहुत ही फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है ना। वहाँ मॉइस्चर होता है तो ये इस मिट्टी के अंदर आप फर्टिलिटी होती है। बट ये जो आपका डेजर्ट है, डेजर्ट वाला जो एरिया है, यहाँ पर सैंड है क्योंकि यहाँ बारिश नहीं आती, बहुत बारिश कम आती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो इसलिए वहाँ की जो सॉइल है वो सैकड़ों सालों में, हज़ारों सालों में धीरे धीरे सैंड में कन्वर्ट हो गई। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल below 150 mm per year. It has arid climate, शुष्क होता है इसका वातावरण, ड्राइनेस होती है, विद लो वेजिटेशन, बहुत कम यहाँ पर आपको वन मिलेंगे, जो है पेड़ पौधे मिलेंगे, लो वेजिटेशन है। एंड स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यहाँ की जो नदियाँ हैं वो सिर्फ आपको रेनी सीजन में दिखाई देंगी, लूनी, चंबल वगैरह, बाकी यहाँ पर कोई नदी नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आपका गंगा, ब्रह्मपुत्रा जो रिवर्स हैं, और इसके साथ वाला जो रीजन है, जो क्षेत्र है, वो बहुत उपजाऊ है क्योंकि ये पेरेनियल रिवर्स हैं जो बहती हैं वहाँ पे। पेरेनियल्स को कहते हैं सदा नीरा, यानी कि हमेशा पानी से भरी रहती हैं। लेकिन जो डेजर्ट्स में जो रिवर्स हैं दे आर सीजनल रिवर्स,
और सिर्फ वो रेनी सीजन में ही देखने को मिलेंगी, उसके बाद गायब हो जाती हैं. Soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach and the sea. समुद्र तक पहुंचने के लिए उनके पास ज़्यादा पानी नहीं होता और वहीं पर वो पानी ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है. लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन. इस डेजर्ट की सबसे प्रमुख नदी लूनी है, लेकिन ये लूनी नदी भी सीजनल है और ये भी पानी से ज़्यादा समय तक भरी नहीं रहती, बहुत जल्दी इसका पानी भी ख़त्म हो जाता है. बट फिर भी हमें ये ध्यान रखना है कि डेजर्ट की सबसे जो खास रिवर है दैट इज़ लूनी. अब हम बात करेंगे आगे इसमें बर्चन्स क्रेसेंट शेप्ड डून्स cover larger areas, but longitudinal dunes become more prominent near the Indo-Pakistan boundary. If you visit Jaisalmer, you may go to see a group of barchans. यानी कि बारचंस का एक समूह, एक ऐसा भूमि है जिसमें बहुत रेत है और बड़े बड़े रेत के बड़े बड़े माउंट्स हैं. तो जब आप जैसलमेर जाओगे तो आप देखेंगे कि क्योंकि वो एरिया पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ लगता हुआ है. अगला इसका जो फीचर है वो है कोस्टल फीचर. अब आपने 4 फीचर्स पढ़ ली हैं, सुन ली हैं, देख ली हैं, समझ ली हैं. पहली फिजिकल फीचर है इंडिया की हिमालयन माउंटेन्स. दूसरा फीचर है इंडिया की फिजिकल फीचर नॉर्दर्न प्लेन्स. तीसरी है पेनिनसुलर प्लेटू और चौथी अभी हमने डिस्कस की है इंडियन डेजर्ट और पांचवी है कोस्टल प्लेन्स. यानी कि समुद्र के साथ लगता हुआ जो क्षेत्र है वहाँ भी बड़े बड़े मैदान आपको देखने को मिलेंगे, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं. The peninsular plateau is flanked by stretch of narrow coastal strips running along the Arabian Sea. ये जो वेस्टर्न कोस्ट है हमारा, ये कहाँ लगता है? अरेबियन सी के साथ लगता है. और जो ईस्टर्न कोस्ट है वो कहाँ लगता है? बंगाल की खाड़ी के साथ लगता है. तो अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बंगाल बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट. द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी. यानी कि जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न घाट्स को हम कहते हैं, वो एक तरह से सैंडविच की तरह है कि उसके एक तरफ तो अरेबियन सी है तो बीच में उसके दूसरी तरफ वेस्टर्न घाट्स है. ठीक है. एंड द अरेबियन सी इज ए नैरो प्लेन. इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस. द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण, जिसमें मुंबई और गोवा आता है. मुंबई और गोवा वाला जो वेस्टर्न घाट है इसको कोंकण के नाम से जाना जाता है, कोंकण. द सेंट्रल स्ट्रेच है इसका. फिर सेंट्रल स्ट्रेच में क्या आता है? इसको कहते हैं हम कन्नड़ प्लेन, यानी कि कर्नाटका का कुछ भाग है इसमें. तो इसके यानी कि जो वेस्टर्न घाट है उसको उसके 3 जो है पार्ट्स हैं. पहला है नॉर्दर्न पार्ट्स. नॉर्दर्न पार्ट्स में क्या आता है? मुंबई और गोवा, और उसको क्या कहते हैं? कोंकण. उसके नीचे वाला जो हिस्सा है उसको कहते हैं कन्नड़ प्लेन, यानी कि एक सेंट्रल स्ट्रेच हो गया, बीच वाला हिस्सा. और सबसे लास्ट है जो साउथर्न है, वाइल द साउथर्न स्ट्रेच इज रेफर टू एज द मालाबार कोस्ट. यानी कि तट को हम 3 भागों में बांट लेते हैं. पहला है कोंकण, दूसरा है कन्नड़ और तीसरा है मालाबार. The plains along the Bay of Bengal are wide and level. यानी कि जो ये प्लेन्स हैं बंगाल बे ऑफ बंगाल के बहुत चौड़े हैं, बहुत लेवल हैं. लेवल का मतलब समतल हैं. इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज़ रेफर्ड टू एज द नॉर्दर्न क्या कहते हैं इसको? नॉर्दर्न सिरकर कहते हैं, सिरकर. वाइल द साउथर्न पार्ट इज़ नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट. सेंट्रल यानी कि जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है
उसको हम दो भागों में बांटेंगे। पहला है नॉर्दर्न सिरकर और दूसरा है कोरोमंडल कोस्ट। लार्ज रिवर्स सच एज द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। अब देखिए व्हाट इज़ डेल्टा। यहाँ पर डेल्टा वर्ड आया तो डेल्टा को समझना बहुत ज़रूरी है। डेल्टा एक वह भूमि का टुकड़ा है जो जब नदियों के द्वारा बहाई गई मिट्टी वहाँ पर जाके गिरती है और वो मिट्टी जो है वहाँ पर जम जाती है और जमने की वजह से वहाँ पर एक जो है बहुत बड़ा एक भूमि का टुकड़ा बन जाता है, तो उसको डेल्टा कहते हैं। जैसे कि बे ऑफ बंगाल में आपका जो है सुंदरबन डेल्टा बहुत ही फेमस डेल्टा है और वहाँ पर सुंदरी ट्रीज़ पाए जाते हैं, सुंदरी ट्रीज़, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड सुंदरबन डेल्टा। लेक की बात करें तो लेक चिल्का इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। चिल्का झील जो कि पड़ती है उड़ीसा में, अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो उड़ीसा में पड़ेगी। उड़ीसा में चिल्का झील है और ये ईस्टर्न कोस्ट पे ही पड़ती है, बहुत ही फेमस ये लेक है। अब हमारा अंतिम पड़ाव पे हम चलते हैं और हमारा लास्ट फीचर को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द आइलैंड्स। अब हमारे दोनों तरफ, वेस्ट की तरफ और ईस्ट की तरफ, यानी साउथर्न पार्ट में, यानी कि जो हमारा पेनिनसुला है उसके वेस्ट में अगर हम बात करेंगे तो आपको वहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड मिलेगा। और अगर हम उसके ईस्ट की तरफ बात जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगा। तो ये दो बड़े हमारे द्वीप समूह हैं। द्वीप का मतलब होता है कि वो छोटे छोटे भूमि के टुकड़े वो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द्वीप, यानी कि पानी में वो टुकड़े पड़े हुए हैं एक तरह से। और वो पेनिनसुला नहीं है, पेनिनसुला का मतलब तीन तरफ से पानी है, एक तरफ पानी नहीं है। लेकिन ये जो द्वीप हैं ये पानी के चारों तरफ के पानी पाया जाता है। तो यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ ए वास्ट मेनलैंड, यानी कि मेनलैंड उसका मुख्य भूमि हो गई जो आपका हिमालय से लेकर के और नीचे कन्याकुमारी तक है हमारा तमिलनाडु, और ईस्ट से वेस्ट से लेकर ईस्ट तक का पूरा पार्ट है हमारा। इसके बाद हमारी कुछ भारत की मेन लैंड के साथ लगते हुए कुछ हमारी और भूमि है जिसको हम आइलैंड कहते हैं। तो बिसाइड्स दिस द कंट्री हैज़ टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। कैन यू आइडेंटिफाई दिस आइलैंड ग्रुप्स? क्या आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो मैंने आपको बता दिया है। वन इज़ लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। This group of island is composed of small coral islands. Either they were known as the Lakkadiv, Minicoy and Amindae. In 1973 these were named as Lakshadweep. इनको अलग अलग नाम से जानते थे पहले, लक्कादीव, मिनीकॉय, अमिनदीव. Now these are collectively known as लक्कादीव, ओके, या लक्षद्वीप कह देते हैं. सो इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर. कवरत्ती आइलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर बैठते हैं, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं ऑफिसर्स बैठते हैं कवरत्ती में. लक्षद्वीप के जो हेडक्वार्टर है वो कवरत्ती है. दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, यानी कि वहाँ आपको बहुत ज़्यादा जीव जंतु मिलेंगे. फ्लोरा एंड फोना यानी कि वहाँ पर आपको वेजिटेशन भी मिलेगी, वाइल्ड लाइफ भी मिलेगी. द पिटी आइलैंड विच इज़ अनहिबिटेड हैज़ ए बर्ड सेंचुरी. और इसी लक्षद्वीप में एक पिट्टी आइलैंड है जो कि जहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता, अनइनहिबिटेड है ये. और यहाँ पर एक बहुत सुंदर बर्ड सेंचुरी है. ओके, तो अब इसमें आगे हम बात करें तो नाउ यू सी द अनदर enlarged elongated chain of islands located in the Bay of Bengal extending from
north to south. These are Andaman and Nicobar Islands. They are bigger in size. They are bigger in size as compared to the Lakshadweep. लक्षद्वीप से ज़्यादा ये बड़े हैं अंडमान निकोबार वाले द्वीप समूह। आर मोर न्यूमेरियस, ज़्यादा संख्या है इनकी, एंड स्कैटर्ड और फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं। The entire group of island is divided into two broad categories, the Andaman in the north and the Nicobar in the south. Okay, it is believed that these islands are an elevated portion of submarine mountains. So these islands groups are of great strategic importance for the country. भारत की रणनीति के तौर पर या भारत की युद्ध नीति के तौर पर ये बहुत, सुरक्षा की नीति से अगर हम देखें, दृष्टि से देखें, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। देयर इज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स टू। जैसे कि लक्षद्वीप में, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी मिलेगी। अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, अलग अलग तरह के जीव जंतु यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। दीज आइलैंड्स लाई क्लोज टू इक्वेटर, ये इक्वेटर के बिल्कुल नज़दीक हैं, एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज़ थिक फॉरेस्ट कवर। A detailed account of different physiographic units highlights of the unique features of each region. It would, however, be clear that each region complements the other and makes the country richer in its natural resources. The mountains are the major sources of water and forest wealth. जो यहाँ के पहाड़ पर्वत हैं आइलैंड में, वो बहुत ज़्यादा पानी का वहाँ भंडार है, पानी स्रोत है वहाँ पर बढ़िया, और वहाँ पर फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द, अगर हम इसको अब समराइज़ करें इस चैप्टर को, हम देखेंगे जो हमारे माउंटेन्स हैं जो नॉर्थ में पड़ते हैं, इसको हम हिमालय माउंटेन कहते हैं, तो ये उसकी बात हो रही है। तो ये पानी के सोर्स हैं, क्योंकि वहाँ से पानी मेल्ट होके आ रहा है, स्नो मेल्ट होके आ रही है, फ्रेश वाटर आ रहा है, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रेनरीज फॉर द कंट्री। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि विच पार्ट ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री, तो आप क्या कहेंगे, इसको बताएंगे नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि उत्तरी मैदान, जहाँ पर बहुत अच्छी फसल होती है, क्योंकि ज़मीन एलुवियम है, मॉइस्टी होती है, मॉइस्चर की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है, ब्रह्मपुत्रा और गंगा यमुना जैसी नदियाँ यहाँ पर बहती हैं, तो इसलिए यहाँ पर फसल अच्छी होती है, अनाज पैदा होता है। दैट इज़ वाई दिस region is called granaries of the country, northern plains. Okay, they provide the base for early civilizations. यहीं पर, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स में ही सबसे पहले लोग आकर के बसे रहे, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये जो कालीबंगा, लोथल, ये ऐसी जो हड़प्पन सिविलाइजेशंस हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशंस है, वो सब यहीं पर आकर के पहले उन्होंने उन सिविलाइजेशंस को स्टार्ट किया। द प्लेटू इज़ स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स। जो हमारा प्लेटू है वो स्टोर हाउस है, मिनरल्स बहुत हैं वहाँ पर, आयरन मिलेगा आपको ज़बरदस्त वहाँ पे, आपको दूसरे और जो है दूसरे मिनरल्स भी देखने को प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। विच हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। इंडस्ट्री के लिए हमें मिनरल्स की ज़रूरत होती है, चाहे वो बॉक्साइट से मिलने वाला एल्युमिनियम हो, चाहे वो आपका आयरन ओर से मिलने वाला आयरन हो, है ना, ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के लिए, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, साउथर्न पार्ट को, प्लेटो को कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। द कोस्टल रीजन एंड आइलैंड्स ग्रुप्स प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। जो हमारे कोस्टल रीजन है, यहाँ पर मछली पालन के लिए बहुत ज़बरदस्त मछलियों के भंडार हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पोर्ट्स भी पाए जाते हैं। पोर्ट्स का मतलब बंदरगाह हैं, जहाँ पर शिप जो है यहाँ से बोर्डिंग डिबोर्डिंग होती हैं। दस द डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ द आइलैंड ऑफ द लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा डाइवर्स फिजिकल फीचर्स है हमारे देश की, उनमें बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा मात्रा में भविष्य की संभावनाएं भरी हुई हैं।
और हमारा देश इन्हीं फीचर्स की वजह से आगे बहुत विकास कर सकता है, बहुत डेवलप कर सकता है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका यहाँ पर समाप्त होता है। और अब इसकी एक्सरसाइजेज हैं, तो एक्सरसाइजेज को फिर किसी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पहले ही बहुत बड़ा बन चुका है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर जो है समाप्त करता हूँ, और आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक दिस वीडियो if you find this video helpful for your studies. I also request you to subscribe this channel if you get the new videos in future. Thank you very much.